In today's class, in chapter Light, we shall be studying about human eye. Human eye. Human eye is a spherical shaped sense organ, diameter about 2.3 centimeter, that gives the sense of sight and helps us to perceive colors and depth. What does it mean? It means that because of this sense organ, we are able to see around us, we are able to see the things with color, and secondly we are able to judge the right distance from us, right depth. So we are actually getting a 3D image. So we have a idea of the object, shape, color, distance, and everything. So what are the main parts of the eye? The main parts of the eye are cornea. So let's have a look on the diagram. Cornea. So cornea is a transparent layer. So it's not totally flat, it's curved, or you can say bulging. So if we look at, so it's the outermost layer of the eye, lens, which is convex. Convex lens is always converging in nature, which helps in the image formation. Iris. The function of iris is to control the amount of light entering into the human eye. Ciliary muscles present on the top as well as bottom. Function of ciliary eyes is to change the focus of the lens when we are looking near and far objects so that we can see nearby objects as well as far objects clearly. Retina is the screen on which the image will be formed. Optic nerve is the nerve which is going to carry the image from the eye to the brain. So let us study all these parts one by one. Working of human eye. Light enters the eye through a thin membrane that forms a transparent bulge on the front of the eye that is called as a cornea. Iris, a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. तो आयरिस का काम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जिस स्पेस के थ्रू लाइट एंटर करेगी दैट्स कॉल्ड एज अ प्यूपल एंड टू एडजस्ट दैट साइज according to the amount of light in which the human being is present. Pupil. Pupil is the small opening in the center of the iris. Lens, which is behind the pupil and helps to adjust the focal length required to clearly focus on the object at various distance. So, lens will change its focal length. And how does it changes its focal length? By changing its shape. And how does it change the shape? With the help of ciliary muscles. So ciliary muscles help in changing the shape of the focal length so that the lens can change its focal length according to the object that we are viewing at, whether we are looking at an object which is nearby or that is far away from us. Then is retina. Retina is the screen where the image gets formed. So retina acts as a screen for the image formation. It is a delicate membrane with large number of photosensitive cells called the rod and the cone cells. So रेटिना किस चीज से बना होता है रॉड और कौन सेल से रॉड सेल्स जो है वो डिम रोशनी में हमें देखने में हेल्प करते हैं एंड कौन सेल्स हमें ब्राइट रोशनी में और कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करते हैं cone are sensitive to bright light and color, whereas rod are sensitive to dim light. So rod
हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिम लाइट में हेल्प करेगा, तो उस टाइम हमें चीज़ें मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट नज़र आएंगी। कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हमें किस वजह से दिखते हैं? कौन की वजह से? Yellow spot is the point on retina where we get a very clear image. Optic nerve, the function of optic nerve is to transmit the electrical impulse from the eye to the brain. कि भी जो भी इमेज रेटिना पे बनी है उसको ब्रेन तक भेजते हैं. Blind spot, there is a point in the eye located at the junction of retina and the optic nerve where no sensory cells are present. This spot is therefore called as a blind spot as it does not support any vision. So the point from where the optic nerve is starting from the human eye, that point is called as the blind spot. Reason because that particular part of the retina doesn't have any sensory cells, so it doesn't have any rod or cone cells, so that's why no image formation takes place there, and that is the reason it's called as a, even if the image is going to be formed there, we won't be able to see that because there is no photosensitive cells there. Light, now let's have a one by one understand the parts of the human eye. Light enters the eye through the thin membrane that forms a transparent bulge on the front of the human eye called as cornea. So now this is a front view of the eye and this is the side view. So transparent layer shown over here, cornea. अगर हम अपनी आंखों की तरफ देखें किसी की, तो हमें एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर लगता है, जैसे ट्रांसपेरेंट की अगर अपनी एक अलग शाइन होती है, उस तरह की एक लेयर हमें दिखती है. Then is iris. Iris is the dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. So iris अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दो पार्ट्स में लेबल है, अपर एंड लोअर, क्योंकि साइड व्यू है. फ्रंट से अगर आप देखो तो ये पार्ट आई का, अगर हम फ्रंट से देखें ये पार्ट हमें नजर आता है, दैट इज कलरफुल पार्ट. ये किसी की आइज में ब्लैक होता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन आइज होता है. तो कहते हैं ना ग्रीन आइज हैं इसकी, ब्लू आइज हैं, ब्राउन आइज हैं. तो किस बेस पे? आइरिस के बेस पे कह रहे होते हैं. और इस आइरिस के बीच में जो ये बिल्कुल ब्लैक सा नजर आता है, दैट इज प्यूपिल. तो यानी कि जो आइरिस है उसके बीच में एक होल है, स्पेस है. और ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आइज के अंदर जो है इस तरह के मटेरियल प्रेजेंट होता है जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. इस वजह से ये हमें ब्लैक नजर आता है. और जो आइरिस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके प्यूपल का साइज बड़ा या छोटा कर देता है. क्यों ज़रूरत है छोटा या बड़ा करने की? जैसे मान लो हम बिल्कुल डिम रोशनी में बैठे हैं, कम रोशनी में बैठे हुए हैं, तो होता क्या है कि हमें आसपास की चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती है, क्योंकि कम रोशनी हमारी आँखों में जा रही है. तो हमारे धीरे-धीरे हमारी आइज़ में क्या चेंज आ जाता है कि प्यूपल का साइज़ धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर एंटर कर सके और हमें आसपास की चीज़ें ठीक से दिख सकें. और अगर हम बहुत ब्राइट लाइट में बैठे हुए हैं कि रोशनी काफ़ी तेज़ है, तो प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि हमें तब थोड़ी-सी लाइट से भी आराम से चीज़ें ठीक से दिख जाएँगी. और अगर प्यूपल का साइज़ उस टाइम छोटा नहीं किया गया, तो ज़्यादा रोशनी के एंटर करने से हमारे आइज़ के इनर जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं. तो इसीलिए आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी कि अगर हम अंधेरे में बैठे हैं, बिल्कुल पिच डार्क है और अचानक काफ़ी देर हो गई है, 15-20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, और एकदम से कोई लाइट ऑन कर दे, तो हमारी आँखें जो हैं वो इतनी तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती हैं. तो हमारी जो पलकें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, आईलिड्स फटाफट बंद हो जाती हैं, क्योंकि प्यूपल के साइज़ को एडजस्ट करने में कुछ थोड़े सेकंड्स लगते हैं. सो एज़ अ प्रोटेक्शन, ऐसे ही अगर हम किसी ब्राइट लाइट की तरफ, सन की तरफ देखने की कोशिश करें, तो क्या होता है, आईलिड्स हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती हैं, क्योंकि इतनी ब्राइट रोशनी की तरफ हमें डायरेक्टली देखना भी नहीं चाहिए. क्योंकि प्यूपल तो साइज़ में छोटा होने में थोड़ा-सा सेकंड्स लगा देगा ना, तब तक ब्राइट रोशनी अगर हमारी आइज़ में गई, तो वो हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती हैं. और ऐसे ही मान लो ब्राइट रोशनी से, मान लो आप बाहर से बहुत गर्मियों के दिनों में अंदर आ रहे हो
तो शुरू में तो घर के अंदर एंटर करते ही ऐसा लगता है जैसे घर घर में थोड़ा अंधेरा-अंधेरा सा है। चीज़ें दिख रही होती हैं बट इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रही होती है, ऐसा लगता है जैसे अंधेरा। बट हम जब अंदर एंटर कर जाते हैं, 5-10 मिनट के बाद हमें बिल्कुल ठीक दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उतनी देर में हमारा प्यूपिल का साइज़ एडजस्ट हो जाता है। Pupil is a small opening in the center of the iris. The lens, which is behind the pupil, helps to adjust the focal length required to clearly focus on the objects at various distances. तो हमने पढ़ लिया कि प्यूपल का साइज जो है बड़ा छोटा आइरिस की कॉन्ट्रैक्शन से हो सकता है। अब जब लाइट प्यूपल के थ्रू एंटर करती है तो फिर पहुंचती है लेंस पर। तो लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है हमारा और कन्वर्जिंग नेचर का है, तो जो भी लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी उसको कन्वर्ज करवाएगा, एक जगह मीट करवाएगा। और इसी वजह से रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज नहीं बनती और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है? तो लेकिन हम पास की चीज़ देखते हैं या दूर की देखते हैं, तो उसके लिए अलग-अलग तरह का फोकल लेंथ रिक्वायर्ड होता है। तो वो सिलरी मसल्स लेंस की शेप को चेंज करके एडजस्ट करती हैं। सिलरी मसल्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में फटाक से फोकल लेंथ एडजस्ट कर देती हैं। आपने कभी देखा होगा, मान लो आप ग्राउंड में खड़े हो और आप घड़ी में टाइम देखते हो, तो घड़ी आपकी कलाई पे बंधी हुई है, तो बहुत पास है। आपको वो भी क्लियर दिखेगी और उसी टाइम आप ऊपर से करके दूर अपने किसी फ्रेंड को देखोगे, आपको वो भी क्लियर नज़र आएगा। तो हमारी लेंस की एडजस्टमेंट बहुत फ़ास्ट होती है, जबकि आपने देखा होगा कैमरा या मोबाइल बल्कि थोड़ा टाइम भी लगा देते हैं एडजस्ट होने में, लेकिन हमारी आई बहुत जल्दी से एडजस्ट करती है फ़ोकस को। Retina. Now, what is retina? Retina is the screen where the image gets formed. It is delicate membrane with a large number of photosensitive cells, and that is rod and cone cells. So cone cells are sensitive towards bright light and color, whereas rod cells are sensitive towards dim light. तो रेटिना का ये तो सो इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ स्क्रीन। जैसे स्कूल में भी आपने देखा होगा कि हम स्मार्ट बोर्ड जब यूज़ करते हैं तो स्मार्ट बोर्ड की इमेजेस किस पर आती हैं? एक वाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड पे उसकी इमेजेस आती रहती हैं सो दैट कि हम स्मार्ट बोर्ड में जो भी वीडियो चला रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, वो देख सकें। तो हमारी आइज़ में भी इस तरह से रॉड और कोन सेल्स हैं। तो जिन एनिमल्स में कोन सेल्स नहीं होते, वो कलरफुल चीज़ें नहीं देख पाते। ऐसे कई एनिमल्स हैं जिनके पास कोन सेल्स नहीं है और लेकिन उनके पास रॉड सेल्स बहुत हैं। जैसे रात को कुछ एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, जैसे आउल है, रात को फुल एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रॉड सेल्स ज़्यादा हैं, तो रात को वो आराम से चीज़ें देख पाता है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स के पास रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम रात को बहुत अच्छे से नहीं देख पाते हैं। अब जैसे मुर्गा है, मुर्गे के पास भी रॉड सेल्स नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको नहीं दिखता है। हमारे पास बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़े हैं हमारे पास, इसलिए हम डिम रोशनी में देख पाते हैं। अब जैसे हेन है, उसके पास बिल्कुल ही नहीं होते रॉड सेल, इसलिए उसको अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं दिखता। जैसे ही सनसेट होता है तो उनकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, वो एक जगह बैठ जाएँगे। अच्छा, लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ, अब मुझे सारी दुनिया की चीज़ें नज़र आने लग जाएँ। सो इसीलिए वो कुकड़ू-कू करता है। तो वो उसकी खुशी का ज़ाहिर करता है। ठीक है? Yellow spot. It is a point on retina where most clear images are formed. Optic nerve transmits the electrical signals from the eye to the brain. So कहाँ पर है ऑप्टिक नर्व? ये रहा ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर है, यहाँ से जाएगी। और येलो स्पॉट हमारी रेटिना का वो स्पॉट, वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेजेस बनती हैं। Blind spot. There is a point in the eye located at the junction of the retina and the optic nerve where no sensory cells are present. This spot is therefore called as a blind spot as it does not support any vision. तो इस जगह पर अगर रेज मीट भी करेंगी तो वो इमेज हमें दिख नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर बनी हुई इमेज हमें कभी नहीं दिखती, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और ये वो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व आइज से ब्रेन की तरफ को जाती है।
अच्छा, आई के ये जो डायग्राम आपको इस स्लाइड पे नज़र आ रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो जब भी आपसे पूछा जाए टेस्ट में या एग्ज़ाम में, तो आपने इसी डायग्राम को लर्न करना है। इससे पहले वाली स्लाइड्स के डायग्राम्स तो नेट से कॉपीड थे, तो वो उनमें एक्स्ट्रा लेबलिंग भी है, वो तो आपकी जानकारी के लिए ही डाले गए थे, बट आपको वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू नीड टू लर्न दिस एंड नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लेबलिंग एंड द शेप्स. So, how many labelings are there? Human eye, lens, so it's a convex lens. Pupil, so it's a gap between the iris. So, iris, cornea, the transparent layer, ciliary muscles. You can label it here also. You can label it here also. Ciliary muscle दोनों side present है. Retina, blind spot, optic nerve. तो ये 8 लेबलिंग्स हैं. ये 8 लेबलिंग्स आपकी श्योर शॉट आपकी डायग्राम में नजर आनी चाहिए. So one interesting fact that I wanted to tell you about human eye is when we were talking about rod and cone cells as they are responsible for vision and bright light, and as well as it's responsible for colors. So some people they don't have uh, a particular type of cone cells, so they are unable to see colors. सो अगर किसी के रेड कोन सेल्स नहीं है तो उसे रेड कलर नज़र नहीं आएगा, तो ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि वो रेड लाइट नहीं देख पाएंगे. मान लो किसी के ग्रीन वाले कोन सेल्स नहीं है कि वो ग्रीन नहीं देख पाएगा, तो उसे ग्रीन कलर नज़र नहीं आएगा. सो दैट्स रियली वेरी डेंजरस वाइल ड्राइविंग. और कई लोगों को कोन सेल्स इतने कम होते हैं कि वो किसी भी कलर को नहीं देख पाते, तो उनको कलर ब्लाइंड कहा जाता है. वैसे वो देख पाएँगे, ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, वो टोटली ब्लाइंड नहीं होते, उनको चीज़ें दिखेंगी बट ब्लैक एंड व्हाइट नज़र आएँगी, कलर्ड नज़र नहीं आती. और किसी में मान लो किसी पर्टिकुलर कलर के लिए नहीं है कौन सेल्स, जैसे आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, इसी तरह से आपके आइज़ भी प्राइमरी कलर्स के प्रति सेंसिटिव होती है. फिर बाकी तो कलर्स की मिक्सिंग से सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर्स मिल जाते हैं. तो मान लो एक पर्टिकुलर तरह का कलर नहीं देख सकता इंसान, तो उस कलर की मिक्सिंग से भी जितने कलर्स मिलेंगे, वो भी उसे ठीक से नज़र नहीं आएँगे. Otherwise, they don't have any problem in reading, writing, and anything like that. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. So, this beautiful words were said by Helen Keller. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ब्लाइंड होना बहुत बुरी, मतलब किसी के लिए भी अच्छा नहीं है कि कोई ब्लाइंड हो. बट ब्लाइंड होने से भी बुरा ये है कि आप आँखों वाले तो हो, लेकिन आपका कोई विज़न ही नहीं है. ज़िंदगी में आपका कोई एम ही नहीं है. So you should have some vision. That's all in this topic of human eye. I hope you have understood the topic well.